Assalamu alaikum student, welcome back grade 6. Student, you might have known that we have done our reading of chapter number 1. Today I will make you do exercise of chapter number 1. But first of all you have to maintain index. Here you have to write page number. Here you have to write date. Here you have your chapter name. Then you have to maintain heading of first semester bi-monthly work has been started. On next page you have to write chapter name, birthday, present. Assalamu alaikum student, welcome back grade 6. As you know, we have done the reading of chapter number 1. Now we will move towards our exercise. Now I will make you do words meaning. First word is बेसन, छोटा तालाब, रिग्रेटेड, अफसोस करना, गम करना, स्क्रबलिंग, पंजों से खुरचना, पेटिफाइड, पत्थर बना हुआ, अनडाउटेडली, बेशक, कॉशियसली मीन होशियारी से, खबरदारी से, सजेस्टेड मीन राय देना, फ्लैटिश, बराबर सा, अनटाइटेडली, बेतरतीबी से, अनफॉर्चुनेट, कमबख्त. Now we will do question answer. Question number 1. How did Omri feel when Patrick gave him his present? Omri को कैसा फील हुआ जब उसके दोस्त पैट्रिक ने उसको उसका सालगिरह का तोहफा दिया? Omri felt disappointed with Patrick present. Omri बहुत ज़्यादा मायूस हुआ पैट्रिक के तोहफे से. Question number 2. Why do you think Omri hid his real feeling from Patrick? Omri ने अपनी real feeling पैट्रिक से क्यों छुपाई, आप बताएं. So answer is Omri hid his real feelings from Patrick because he didn't want his friend to feel as through his gift wasn't appreciated. Omri ने इसलिए अपनी फीलिंग पैट्रिक से पाई, वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसकी वजह से कोई परेशान हो और इसके गिफ्ट को भी सराहा नहीं था, यानी कि अप्रिशिएट, यानी कि कुछ कहा नहीं. क्वेश्चन नंबर 3. Had you been in Omri play, how could you have used Patrick gift? Give reason for your answer. कह रहे हैं कि अगर आप ओमरी की जगह होते तो पैट्रिक का गिफ्ट किस तरीके से आप इस्तेमाल करते. So answer is if I had been in Omri's play, I would have added the plastic red Indian to my collection of plastic figures. I could start a new collection of our red Indians and cowboys and make up different games to play with it. In this way the toy would not have been wasted. कह रहे हैं कि अगर मैं ओमरी की जगह होती तो मैं क्या करती कि मैं उस रेड इंडियन प्लास्टिक यानी कि वो जो इंडियन खिलौना था उसको मैं जमा करती, यानी कि अपने नए कलेक्शन में रखती, न्यू कलेक्शन बनाती और काउ बॉयज़ के साथ खेलती, अलग अलग उसके साथ गेम खेलती. इस तरीके से जो टॉय जो पैट्रिक ने दिया है वो वेस्टेड नहीं जाता. Number 4. Comparing the Patrick gift with Gillen's, whom do you find more thoughtful and why? Give reason. कह रहे हैं कि अगर पैट्रिक और गिलन्स यानी कि ओमरी के छोटे भाई यानी कि भाई से उस गिफ्ट को कंपेयर करें तो बताएं कौन सा गिफ्ट ज़्यादा थॉटफुल होगा, यानी क्या होगा, और रीज़न बताएं. So answer is I think Gillen's gift was more thoughtful because he knew Omri could feel excited by it. Patrick had given Omri one of his old toys because he did not want to play with it anymore. He did not care if Gillen's could play with it. कह रहे हैं कि अगर उसके भाई का और उसके दोस्त का गिफ्ट की वो लगाया जाए तो
ज़्यादा थॉटफुल उसके भाई का गिफ्ट होगा, क्योंकि ऑम्बरी को ज़्यादा फील नहीं हुआ, वो ज़्यादा एक्साइटेड अपने भाई के इसमें था, क्योंकि उसको पैट्रिक का गिफ्ट पसंद नहीं आया था, ना ही उससे खेलना चाहता था, उसको बहुत ओल्ड टाइप का भी था, इस वजह से उसको खेलना पसंद था और उसको उसके साथ खेलने में, और इसी वजह से उसको उसकी खिलौने की केयर भी थी। वो अगर उसका छोटा भाई भी खेल ले या भाई बहन भी कोई भी खेल ले तो उसको कोई फिक्र नहीं थी उसके तोहफे की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस नेक्स्ट इन द स्टोरी? आपको क्या लगता है कि आगे जाके स्टोरी में क्या हुआ था और ऑम्बरी को क्या लगता था? So answer is, I think that Omri and the Red Indian become friends and Omri shows him with his other toys. Omri would hidden the Red Indian from Patrick because he would not want to Patrick to take back him. मेरे ख्याल से ऑम्बरी का बता रही हूँ कि उसने उसके साथ दोस्ती कर ली थी और उसके साथ वो खेल भी रहा था, उसने शो किया रहा है, लेकिन ऑम्बरी ने रेड इंडियन को छुपा दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसको पैट्रिक को वापस रिटर्न करे। सो स्टूडेंट, कम टू द एक्सरसाइज नंबर बी, रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट। रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी एंड देन आंसर द क्वेश्चन। नंबर 1, यू कुड हैव गॉट अ चैन फॉर इट। उसने चेन के बारे में पूछा था लाइन में कि कहाँ से चेन मिली और पूछा गया था। किससे पूछ रहा था वो, ये बात आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। हु से दिस, किसने पूछा था ये, टू वूम, किससे। ऑम्बरी से दिस टू हिज मदर, ऑम्बरी ने अपनी वालिदा से पूछा था। नंबर बी, व्हाट इज इट, क्या है ये। इट इज़ अ टाइनी ऑर्नामेंट की, ये एक पतली सी और एक बहुत पुरानी की है। नंबर 2, एंड ही वाज अलाइव, किसने कहा था कि ये अलाइव है, स्टोरी की लाइन में आपको बताना है। सो आंसर इज, और कुछ नंबर ए इज, हु इज अलाइव, कौन था जिंदा। सो आंसर इज, द रेड इंडियन फ्रेग्रेंस इज अलाइव। उसने कहा कि मेरे ख्याल से जो मेरे को टॉय दिया गया है वो जिंदा है। नंबर बी, वाई इज दिस सरप्राइजिंग, क्यों वो इतना हैरान कुन हुआ। So answer is, this is surprising because the figure was a non-living object. वो इसलिए हैरान ज़्यादा हुआ क्योंकि जाहिर सी बात है जो टॉय था वो एक बेजान पुतला था। Come to the number C, what do you think has made this happen? आप आगे बताएं कि ऐसा क्या हुआ। I think the cupboard made this happen. मेरे ख्याल से इस cupboard के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था। The cupboard is likely to have magically properties. उसको ऐसा लगा था कि जो कपबोर्ड है वो एक जादुई प्रॉपर्टी यानी कि जादुई चीज़ है। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर सी, वर्ड्स मीनिंग। नंबर 1, फाइंड द सूटेबल एक्सप्रेशन इन द स्टोरी टू कंप्लीट द फॉलोइंग। नंबर 1 दिया गया कि आपको, इट वाज हर डैश टू गेट अ पपी स्ट्रॉन्ग हॉब, यानी कि आपको इस स्ट्रॉन्ग हॉब यानी कि ब्रैकेट में जो दिया गया उससे आपको इस ब्लैंक में इससे बेस्ट आपको डालना है, तो हमने क्या डाला, डेयरेस्ट विशेस। नंबर बी, दे वर ऑल डैश, ब्रैकेट में दिया हुआ है फुल ऑफ थैंक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटफुल, इससे अच्छा लिखेंगे। नंबर सी, प्रिटेंडिंग आई वॉज asleep आई लेट डैश विदाउट मूविंग आउट ऑफ ऑल, तो हम यहाँ लिखेंगे परफेक्टली स्टिल। नंबर डी, शी वॉज डैश द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, तो यहाँ लिखा ब्रैकेट में सर्टेनली, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अनडाउटेडली। नंबर ई, द जार वाज डैश, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है क्लोज, तो हम यहाँ लिखेंगे शट, यानी कि तेज़ी से बंद हुआ है। सो स्टूडेंट, आपका है नंबर 2, यूज़ द वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। नंबर 1, अप्रिशिएटेड, डिसअपॉइंटेड, कंप्लेन, कंप्लेनिंग। तो स्टूडेंट, दिस इज़ योर होम असाइनमेंट, make your sentences and this chapter is complete.